Dear students, welcome to you ninth lecture of periodic classification of elements. इस वीडियो का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पी ब्लॉक और एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था। सबसे पहले हम लोग जानते हैं विच एलिमेंट्स आर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। किन एलिमेंट्स को हम लोग कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर? नाउ वी गो फर्स्ट हेडिंग D block elements. Clear? S block में हम लोगों ने पढ़ा था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू ns ऑर्बिटल and p block elements last electron goes into np orbital. And you know, in d block elements, last electron goes in n-1 d orbital. यानी बाहर से पिछला जो शेल होगा उसमें एंट्री करेगा। Those elements in which last electron lost or differentiating electron goes into n-1 d orbital, known as d block elements. That is, last electron goes into ultimate cell. तो क्यों कह दीजिए d orbitals of ultimate shell, also called preceding shell. Preceding shell in D block elements. इनको रखा कहाँ गया है? These are placed in periodic table between S and P block in this way. These are S block elements. These are P block elements. Between them, these are D block elements. These are placed from 4th period to 7th period, and from group 3rd group to 12th group. Clear? Yes. These are placed in periodic table between S and P block elements. Between S and P block elements in groups. इनके ग्रुप नंबर क्या है? इन ग्रुप 3 to 12 and periods 4 to 7. पीरियड नंबर 4 to 7 में इनको रखा गया है, तो ग्रुप नंबर 3 to 12 ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। यहां पर मैंने बताया लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इन d orbitals of ultimate shell or preceding shell. What is the ultimate shell? Suppose Suppose there are 4 shells are given.
ठीक, और suppose there are 5 shells are given. There are first, second, third, fourth, fifth. So it is called outermost orbit. Outermost orbit. जो outermost orbit होती है, उसका जो पिछला शेल होता है, ठीक पीछे वाला शेल, उसे कहते हैं हम लोग न्यूल्टीमेट शेल. It is called न्यूल्टीमेट or preceding shell. That means न्यूल्टीमेट shell is just second shell from the last. From the last it is first, it is second shell. तो मैंने क्या बताया है? यहाँ पे मैंने एक बात भी बताई है. Last electron goes in n-1d orbital. Clear? Suppose this is n number, so this is n-1. यहाँ के d ऑर्बिटल जो होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा. ये बात कही गई है हमारे पास. क्लियर? यहां पर पीरियडिक टेबल में आप देखेंगे हम लोग ग्रुप्स की बात करते हैं तो ग्रुप थर्ड 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इनमें इनको रखा गया. पीरियड नंबर 4 5 6 और 7 में खाली इनको रखा गया. बस. There it is also called third B, fourth B, fifth B, sixth B. This is seventh B and this is eighth group. And it is the first B and it is second B. The elements are placed scandium 21 and after it titanium 22, vanadium 23, chromium 24, manganese 25, iron 26, cobalt 27, nickel 28 and copper 29 and then zinc 30. These elements are placed in the same way. They are started with yttrium. Yttrium से start होता है 39 से, and then zirconium 40. In the same way, there niobium 41 and then molybdenum 42, and after it technetium 43 and Ru. You know what is the name of Ru? Rhodium. Ru means rhodium 44, and after it the Rh the 45 and the palladium 46 and the silver 47 and the cadmium 48. Sorry, इसका टेक्नीशियम के बाद इसका एक नाम रुथीरियम and then rhodium, palladium, silver and cadmium. There it is started with the lanthanum and it is with the actinium 89. इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास में कि लैंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक में भेज दिया गया और जो नेक्स्ट एलिमेंट आपका यहाँ पर है 57 का 58 नहीं है, 58 to 71 एफ ब्लॉक में ट्रांसफर किए गए हैं. Hence it's placed hafnium. They are 72. Here. After it, tantalum, then tungsten 73, 74. W means tungsten, clear, and the rhenium
75. After it, osmium 76. Then iridium 77. After it, that platinum 78, and then gold 79, and then mercury 80. यहाँ भी बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है कि 89 के बाद एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के 103 तक को एफ ब्लॉक में ट्रांसफर किया गया. एंड द नेक्स्ट एलिमेंट द रदरफोर्डियम, इट इज 103. इसका IUPAC सिंबल क्या होगा? UN T. इसका IUPAC सिंबल हमने बताया था. जो भी एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर है उनके लिए IUPAC सिंबल भी है, नेमिंग है हमारे पास. इन द सेम वे DB दुगनियम, सॉरी ये 104 है आपका. क्योंकि 103 तक आपके एफ ब्लॉक में भेज दिए गए और ये है आपका 4 के लिए Q. एंड देन डोबनियम 105. इसके लिए सिंबल क्या होगा? U, N और P के लिए पेंटियम 105. इनके IUPAC सिंबल नीचे लिख रहे हैं आपको. In the same way, next atomic number 106 is called seaborgium, and their symbol is U, N, H 11106. क्या बताया मैंने आपको? seaborgium. After it, borium 107, that is U, N, S. अनसेप्टियम, ये भी इसका नाम है IUPAC में 107 का. Then atomic number 108 HS. 108, they are U, N, O. 108. Clear? And then atomic number 109. Its symbol is IUPAC UNE 109. 9 के लिए क्या होता है? E. ठीक, E डबल N इसका नाम. And then 110. And after it, इसके लिए सिंबल क्या होगा? UN. ये सिंबल कैसे है, इनकी नेमिंग कैसे होगी, ये हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं. एंड देन 101, इट इज फॉर, ये प्रोफेसर रॉन्जन के नाम के पर रखा गया इसका नाम, रॉन्जेनियम. इट सिंबल इज U, क्योंकि तीनों ही 1 है. एंड आफ्टर इट एटॉमिक नंबर 112 Cn, that is UUB 112. तो यहां पर ये एलिमेंट्स हैं, आप ध्यान से देखें. these are 40 एलिमेंट्स. ये इनके IUPAC नेमिंग थी इन एलिमेंट्स की. तो देखें इस सीरीज में 10 एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स, 40 एलिमेंट्स हैं. क्लियर? ये भी हमारे पास जो 4 एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग सीरीज का नाम देते हैं. क्लियर? यहां पर ये जो हमारे पास में एलिमेंट्स हैं इन्हें कहते हैं 3D सीरीज एलिमेंट्स. इन्हें कहते हैं 4D सीरीज एलिमेंट्स. एंड दीज आर 5D सीरीज एलिमेंट्स एंड दे आर 6D सीरीज एलिमेंट्स. यानी डी ब्लॉक में भी एलिमेंट्स को 4 सीरीज में बांटा गया, 4 सीरीज में. किस बेस में बांटा गया है ये भी जान लें हम लोग. When you write configuration of these elements,
ठीक, जब इन एलिमेंट्स का फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 3d ऑर्बिटल. Write the configuration of scandium. There will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंट्री करेगा. इन द सेम वे लास्ट जिंक है, वहां 30 एटॉमिक नंबर है. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, 3d10 डी में एंट्री करेगा. Will you write configuration of these elements of period number 5? ये आपके 3d सीरीज एलिमेंट्स थे, 5d सीरीज थे. ये यहाँ पर क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 4d ऑर्बिटल एंड दिस 6 पीरियड में जो हमारे पास में कंडीशन चल रही है, यहाँ पर क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 5d ऑर्बिटल एंड हेंस लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 6d ऑर्बिटल्स. सो these are names 3d series, 4d series, 5d series, 6d series elements. Clear? Now again, यहां पर आपकी जो एलिमेंट्स हैं, ठीक, ग्रुप नंबर 3 से लेके 11 तक के एलिमेंट्स, these are called ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ये पूर्व में आपको एक वीडियो में बता चुका हूं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, और वहां मैंने बताया था इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड सियन, अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज their d orbitals are incomplete in their atoms or in their oxidation states. उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में या एटम में कहीं ना कहीं डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होगा. मगर जिंक, कैडमियम, मरकरी में देखिए आप कॉन्फ़िगरेशन या इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स में तो सभी जगह डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है. सो दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बट दीज आर स्टडीड इन they are transition series elements. इनको ट्रांजिशन सीरीज के लास्ट में मानते हैं क्योंकि इनकी many properties are similar to the transition elements. So we say their transition series are 4 types. 3d series started with the scandium 21 to zinc 30, and 4d series elements of the period 5 did from yttrium 939 to cadmium 48, and there are 5d series in 6th period in which there are 14 elements, lanthanum and then hafnium. Lanthanum 57 है, then hafnium 72 to mercury 80, and in the 6d series elements in the period 7 therefore again 10 elements. One is the actinium 89 and then another rhodium 142, ठीक, सेलेनियम 112 तक आपका चल रहा है हमारे पास. कॉपरेनियम आपका है, तो रॉन्जेनियम के बाद कॉपरेनियम को स्थान दिया गया है. These are elements of D block elements. आइए इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं. तो हम लोगों ने खाली ये जाना व्हाट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. क्लियर? फर्स्ट नंबर वी गो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. दे आर outer configuration of D block elements is n minus 1 D 1 to 10.
एंड NS 0 to 2। ये यहां पर इनका कॉन्फ़िगरेशन। n-1d का मतलब इसके पहले n-1p6 n-1 s2 होगा। We see some examples like there's scandium-21. You will write the configuration. There will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. That means there are 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2। आउटरमोस्ट शेल ये है कि n की वैल्यू कितनी हो गई 4 और n-1 की वैल्यू कितनी हो गई 4 - 1 = 3। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू 3d। आउटरमोस्ट शेल के न्यूल्टीमेट शेल के d ऑर्बिटल में जा रहा है हमारे पास। ये आपका आउटरमोस्ट शेल है 4th नंबर और 3rd नंबर इज द न्यूल्टीमेट शेल, वहां के d ऑर्बिटल में एंट्री कर रहा है। तो आप देख रहे हैं आउटरमोस्ट s में हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 n में, और n-1 में एंट्री कहां शुरू हुई है 1 इलेक्ट्रॉन से। यानी जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट होगी वहां 0, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जो न्यूल्टीमेट शेल है यहां देख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां स्टार्ट हो रहे हैं 6 to 8 + 1 9। हम यूं कह सकते हैं they are really outermost shell contains 0, 1 or 2 electrons, and ultimate shell (9 to 18 electrons). 9 to 18 चलेंगे आपके। Also we check some other examples like there chromium. You know chromium is the exception of Bose principle. The configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and there 3p6, and there 4s1, 3d5। आप देख रहे हैं यहाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट के s में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया है और n-1d में 5 इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। आप देखें थर्ड शेल में 6 to 8, 5, 13 एलिमेंट्स हैं, and outermost shell contains 1 electron. In the same way, zinc, there are 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, and 3d10. As outermost shell contains 2 electrons, s2, and d10, 6 to 8 to 10, 18. तो outermost में s में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एक आपका है पैलेडियम 46, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें आप। It is also a exception of Abbo's principle. When you write this configuration 1s, 2s 2p, 3s 3p, 3d 4s 4p, 4d 4f, you write according to Abbo principle। जहां भी आपको प्रॉब्लम हो इसको आप स्केच कर लो। ठीक, मैंने बताया था this is the order of energy in this। You have 46 elements, 46 electrons, so 2 ठीक 2 to 4, 6 10 to 12, 6 18 20 20 डी में कितने आते हैं 10, 30 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक, पी में 6 जा सकते हैं 36, and then 2 38। ठीक, अब 38 के बाद आपके पास कितने बचे इलेक्ट्रॉन 6 to 8, तो यहां पर 8 जाने चाहिए। ठीक, तो ध्यान दें इसका जो नेचर जो आपका बाय रूल इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and then 4s2 and 3d10
and 4p6 and 5s2 and 4d8। मगर मैंने बताया था लास्ट में d ऑर्बिटल का एग्जैक्टली फुलफिल्ड होना एक स्टेबल अरेंजमेंट होता है। उसको पाने के लिए जो है यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाते हैं और इसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाता है। इट इज एक्सेप्शन ऑफ आवर बॉस प्रिंसिपल। Next, they are elements show variable valency and oxidation number। बहुत से एलिमेंट्स में वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, लाइक दे आर आयरन 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। कॉन्फ़िगरेशन लिखें आप। इट शोज टू वैलेंसीज, एक तो +2 वैलेंसी शो कर रहा है where 2 electrons are lost by the iron from 4s। ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ चुके हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये आपका 4s 0 हो जाएगा 26। और इसकी एक वैलेंसी और शो हो रही है। There 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d5। Now you remove one electron from there। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ns और n-1d इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अबाउट सिमिलर है। एंड जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स गिव colored ions and compounds due to incomplete d orbitals। ध्यान रखें, केवल वे ही आयन कलर्ड होंगे जहां d ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट होगा। जहां d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा वो कलरलेस होंगे। For example, they are cuprous ion। cuprous ion में आप देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो यहां पर D10 होगा लास्ट में, so it is colorless। बट जो क्यूप्रिक आयन है, ठीक यहां लास्ट में D10 मिलेगा आपको, एंड इट इज अ ब्लू कलर। ब्लू कलर देता है ये क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है। इन द सेम वे ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स। और यहां के जो एलिमेंट्स हैं आपके मेटल्स, ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। दे गिव कॉम्प्लेक्स आयंस and also form alloys। और इनमें आपके नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स बनाते हैं। सम फॉर्म नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, इनमें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स भी बनते हैं। और यही नहीं है, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाते हैं। ये डिटेल में प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे जब डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के बारे में हम लोग उसकी यूनिट पढ़ेंगे। आल्सो फॉर्म इंटरसीजियल कंपाउंड्स। ये जनरल प्रॉपर्टीज थी डी ब्लॉक की। इस वीडियो को आप समझें
एंजॉय करें और एफ ब्लॉक के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें, नेक्स्ट लेक्चर को जानें।